Good morning. Morning. Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Okay, let me tell you. Day after tomorrow, आपका मार्क क्यों लेंगे हम for the month of February, and your topic will be various approaches to management. Okay, full chapter. Do you want to revise it? Ma'am, unit 3. Switch on your videos. Switch on your videos and let's discuss this. Do you say it's a long chapter? It's a long unit. So, do you want to revise this chapter before attending your mark you? Say yes or no. If you don't want, then it's fine. If you want, then say that yes. Yes, ma'am. See, because you were saying that on Saturday you want to keep the class as interactive class, right? You don't want to study a new thing. You just want to sum up what you studied the entire week. So Saturday is gone, but before this mark you, but you can attend it without revision also, because I have revised it even while I was teaching you that chapter. So what do you want? Today is Tuesday, Thursday, I'll take your mark you. Okay. And on Thursday, your topic will be? Saturday, ma'am. No, Thursday. Thursday. And your topic will be various approaches to management. How many students are here? 18 participants are here in the class. I'll drop a message in your group so that others who have not attended the class will also get to know. Have you submitted your assignment? Today is the last day, right? No, ma'am. Next day. It's tomorrow? Yes, ma'am. Yeah. And why Thank did you you, write ma'am. that, ma'am? Why did you write that, ma'am? 15th is the last day? मैम सबमिट तो आज ही करेंगे मैम, क्योंकि लिंक प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए. He is taking 1 day grace, हाँ? मैम को Yes, थोड़ा ma'am. सा हड़बड़ा दो, मेरे पास आंसर आ जाए. यस मैम. So Thank you, smart ma'am. people. लेकिन आप ही का जानते हैं मैम, सबसे पहले आया है. ऐसा चलो. लगता है वो जो सारा YouTube पे लिंक थी नहीं बोलता है बच्चा सब कि हाँ ये टीचर लोग का कन्वीनियंट है, तो आप ही का नाम लेता होगा मैम. Inflating me like anything. सुबह क्या खाया था नाश्ते में? चलो. Oreo. Okay. चलो. We'll start the class today. So, okay, so this is done on Thursday. We'll start with, we'll do mark you, and the pattern will remain the same, just as you attended your mark you last time. You will remain in waiting. आप login करेंगे अपने login के time पे, and do not unjoin if I keep you waiting for a longer time, because then there will be questions. आप wait करेंगे, आपका question हो जाएगा, आप exit कर जाएंगे. ठीक है? मैम ये ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर डिस्क्रिप्टिव, मतलब सब्जेक्टिव में? कैसे डिस्क्रिप्टिव दोगे ऑनलाइन, जरा ये बता दो. डिस्क्रिप्टिव Objective, मतलब no, ओरली objective. मतलब. हाँ, oral exam ही होगा.
Okay, हाँ, just तो as you attended the last time. Yeah, last mark you attended. Yes. No, ma'am. No. Acha, that is why you don't know. No, it will be an objective question. It will be objective type of mark. I'll ask you questions and then you need to answer. 5 questions, almost 5 till 5, 4 or 5 questions to you. So go Okay, ma'am. study your approaches to management properly. I'll drop it in group because today only I see 20 participants have joined it now. Now, let's start today's class. We were doing decision making. In decision making chapter में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. दो तीन मॉडल है, उस मॉडल का नाम रखना है, नाम याद रखना है, और रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल. So decision making में you studied कि what is decision, why is decision making important, when do we make decision, okay, and the two kinds of, and the other fact that जब आपको decision making ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप उस पे ये चीजें भी लिख सकते हैं जो आप अलग से सीख रहे हैं. For example, Peter Drucker has said that whatever a manager does, he does by the act of decision making. Okay, and this decision making by a manager does not only have implication on the organizational growth but also on the career growth. We have discussed it how. Okay, after that after that we studied what are the two types of decisions. One is programmed decisions and the other one is non-programmed decision. Okay, so programmed decisions are the routine decisions, the repetitive decisions which has already been taken, which is taken frequently, so the outcome of that decision is known. And non-programmed decision making is something that we don't do regularly. These are non-recurring, these are not routine decisions, and therefore a lot of intuition, a lot of subjective judgment, a lot of intelligence of the manager goes in making a non-programmed decision. Now, we have to, in this chapter, you have to study 3 models. The first one is rational decision making model, which we did in the last class. बाकी के जो 2 मॉडल हैं वो लगभग सिमिलर टाइप के हैं, in the sense that rational decision making model, अभी हम रिवाइज करवाएंगे इसको. अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया तो इसका मतलब कि जो आगे वाले डिसीजंस हैं वो दोनों डिसीजंस जो डिसीजन मेकिंग है दैट बिकम्स लेस एंड लेस रैशनल. रैशनल का क्या मतलब होता है? सही और गलत में डिफरेंस करना. और ये डिफरेंस कैसे होता है? रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या था वो समझ लो तो ये दोनों तो कुछ है नहीं. क्या था? चलो रिवाइज करो. क्या था रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल? देख के बताओ. पहले सर मैम आइडेंटिफाई करना था प्रॉब्लम, फिर जनरेट वो रिलेटेड जो होता है मैम वो. ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना था. उसके बाद उसके सेकंड में था जनरेट करने के लिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन ढूंढना था. सॉल्यूशन को फिर इम्प्लीमेंट करना था मैम. और फिर इम्प्लीमेंट करना था और फिर उसको इवैल्यूएट करना था. लेकिन in between all this, don't you think that this rational decision making has laid a lot of stress on the fact that everything is very very sequential, everything is in a sequence, everything is already known. मतलब अगर हम 4 ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4 ऑल्टरनेटिव में चारों ऑल्टरनेटिव का वैल्यू असाइन करना था. याद है? You have to assign value to the alternatives and then decide कि कौन सा alternative better होने वाला है. So this way, the rational decision making model believes that everything is beforehand known to the organization. I mean the managers in the organization. And the way they do decision making is very very logical, very very sequential. उनको पता है कि क्या outcome आएगा, बहुत logical है. और मैम ये प्रोग्राम होगा, ये नॉन प्रोग्रामिंग होगा? यूज होता है दोनों के लिए. दिस इज अ डिसीजन मेकिंग मॉडल. इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ. ओके, सो
रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इज अ वेरी वेरी सीक्वेंशियल एंड लॉजिकल काइंड ऑफ कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है, देन द ऑल्टरनेटिव्स you assign values to alternatives and then you find out one alternative, you implement that and you evaluate that. Okay, ये जो बाकी के डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं, जैसे हर्बर्ट साइमन का एक नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल है और उसके बाद एक गार्बेज कैन मॉडल है तुम्हारे मॉड्यूल में, और भी होता है, यही दो दिया हुआ है, ये पढ़िए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है ये लेस एंड लेस रैशनल होता जाता है। जितना रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल है उतना ही लेस रैशनल हर्बर्ट साइमन्स का मॉडल, थोड़ा उससे कम रैशनल, और गार्बेज कैन कंप्लीटली इरेशनल टाइप का मॉडल है। यानी हर्बर्ट साइमन के जो नॉर्मेटिव मॉडल है, नॉर्मेटिव मतलब ऑफ सम स्टैंडर्ड, देयर इज सम स्टैंडर्ड अटैच्ड टू इट। हर्बर्ट साइमन के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा कि ही वाज अ नोबेल प्राइज विनर डिसीजन मेकिंग में। हर्बर्ट साइमन को नोबेल प्राइज मिला था 1978 में। ही हैज helped decision making as an organizational activity to evolve to a great extent. Okay, he was a Nobel Prize winner. According to Simon's normative model, what he says is that a manager cannot have information about all the alternatives in the organization. ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि ये इतना आसान नहीं है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल की तरह की 4 ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दिया और उसमें से बेस्ट ढूंढ लिया, और फिर ये साइकिल, याद है ये बात, फिर वो साइकिल रिपीट होती रहती है। मतलब अगर एक ऑल्टरनेटिव चूज करने के बाद तुमने उसको इम्प्लीमेंट किया और डिजायर्ड रिजल्ट वैसा नहीं आया जो तुम चाहते हो, तो फिर you have to go back and test another alternative with it. Remember? दूसरा ऑल्टरनेटिव फिर टेस्ट कीजिए, and this process will go on increasing. This process will go on perpetuating till you find appropriate solution of the problem. तो उसके जैसा ये नहीं है। हर्बर्ट साइमन बिलीव कि क्योंकि डिसीजन मेकिंग मॉडल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये पॉसिबल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के लिए कि वो सारे ऑल्टरनेटिव्स एट अ टाइम ढूंढ पाएं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ मैनेजर टू फाइंड ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एट अ टाइम, और कभी कभी नॉन अवेलेबिलिटी भी होती है। दूसरी बात, आपके पास अगर ऑल्टरनेटिव है भी तो भी यू कैन नॉट predict the outcome of a complex situation. ठीक है, you cannot predict the outcome of a possible, पहली बात तो कि you cannot have all the alternatives. दूसरी बात, you cannot, even if you have the alternatives, you cannot have possible outcomes of all the alternatives. Now, what is worth highlighting about Herbert Simon's normative model is that he believed that managers are restricted or limited by bounded rationality. देखो, bounded rationality, rational word यहाँ भी आया है, but what he says is that he is restricted by bounded rationality. क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जब रैशनल कैन मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पे कहीं पे भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है ऐसा पढ़े थे? कहीं ऐसा ध्यान आया कि किसी मैनेजर के ऊपर फोकस किया गया है कि मैनेजर के पर्सनल किसी डिफरेंस की वजह से भी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होता है? पढ़े थे, याद है? यस मैम, इम्पैक्ट पड़ता है अगर पर्सनल नेशनल में पढ़े थे। थर्ड अप्रोच आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में, फाइनल अप्रोच परसेप्शन का था, पीपल्स परसेप्शन। नहीं पढ़े थे। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं था कि the manager's personal behavior impacts it. But Herbert Simon ने ये जो बोला कि the decision making in the organization is restricted or limited or for that matter affected by bounded rationality. तो bounded rationality का क्या मतलब हुआ? जैसे
क्या इस बात से डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? होगा? क्या तुम किसी इजी प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? नहीं, नहीं, ये इम्पैक्ट होगा ना? If you are solving a more complex problem, your decision making will be impacted. Second thing, आपका डिसीजन, हाँ बोलो। कृष्णा बोल रहा अनम्यूट नहीं हो रहा उसका मैम। अनजॉइन कृष्णा, अनजॉइन एंड देन रीजॉइन, ये होता है कभी कभी। तुम अनजॉइन कर लो एंड देन यू रीजॉइन। Okay, then the next thing is there are various other factors जो कि डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है, लेकिन रैशनल डिसीजन मेकिंग में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जैसे कि the problem being complex, the environment being uncertain. Okay, तुम अभी कोई डिसीजन लिए, तुमने एक डिसीजन लिया कि तुम्हारा कोई रॉ मटेरियल है जो मान लो अफगानिस्तान से आने वाला है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी चीज में कारपेट के सपोज करो कि कारपेट की इंडस्ट्री में हो तुम, और तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है वो अफगानिस्तान से आने वाला है। तुमने ये डिसीजन ये सोच करके लिया कि भाई ये अच्छा होगा, रॉ मटेरियल सस्ता होगा, रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का होगा। अब गवर्नमेंट का रिलेशन खराब हो गया अफगानिस्तान से, उसने काफी हद तक ट्रेड को इम्पैक्ट कर दिया, रेट बढ़ गया। क्या ये तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट नहीं किया ना? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द अनसर्टेनिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, बट ऐसी कोई चर्चा रैशनल डिसीजन मेकिंग में तो नहीं थी। देन द अदर फैक्टर्स लाइक limited capacity of the human mind. All persons are different, even the managers are different. 5 managers at a similar post might make 5 different decisions on the same occasion. So this is one capacity, ये individual behavior पे focus कर रहा है. This individual behavior is getting highlighted, which was not mentioned in rational decision making model. Okay, so these amount and timeliness of the information. See, तुम कोई प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम में डेटा फीड करते हो ना? अच्छा चलो ऐसे समझो, HRIS समझते हो? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब वो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें कि एम्प्लॉइज का कब आ रहा है, एम्प्लॉय कब जा रहा है, उसका लीव कितना है, उसकी छुट्टियां कितनी बची है, किसी टाइप का उसने लोन लिया है तो उसका EMI कितना, मतलब सब कुछ जो भी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं HRIS। ठीक है, HRIS एक सॉफ्टवेयर होता है। HRIS तो उतना ही अच्छा होगा ना जितना कि अच्छा आप उसमें डेटा फीड करेंगे। इट इज ऑल अबाउट डेटा। आप सही डेटा फीड करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। डेटा इधर उधर होगा तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो थोड़ा मिसगाइडेड होगा। ये हो सकता है कि नहीं? यस मैम, हो सकता है। So timeliness and the amount and quality of information which is given to you is another factor. ये भी हर्बर्ट साइमन ने बोला कि डिसीजन मेकिंग इतना आसान नहीं है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, 4 अल्टरनेटिव ढूंढे और उसमें से एक अल्टरनेटिव में वैल्यू असाइन किया और आपको लगा कि वो वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हालांकि वो सीक्वेंशियल है, एनालिटिकल है, प्रोएक्टिव है, इट्स नॉट रिएक्टिव, लेकिन स्टिल। So these are the factors, जैसे limited information है, टाइम का डिमांड है, amount and timeliness of information है, the complexity of the problem, the uncertainty of the environment. These are the factors also that affect the decision making of an organization. ठीक है? Limited information processing, कभी कभी जो limited information होता है उसकी वजह से जो managers होते हैं they have a tendency to acquire manageable rather than optimal amounts of information. मतलब और भी चीजें होती हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि उसमें सिर्फ इतना सीक्वेंशियल सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। There are times when we go for shortcuts. There are times when we believe something which has worked in the past. We believe something which has worked in the past. For example, जैसे मान लो कि मेरे पास टाइम नहीं है,
ठीक है, मैं एज अ मैनेजर हूँ, आई एम ऑक्यूपाइड इन सम अदर वर्क्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच नीड्स माय कीन अटेंशन, आई डू नॉट हैव टाइम टू स्पेयर। एक मैनेजर को बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है एक दिन में, ठीक है, हिज होल लाइफ in the organization is based on decision making, he is paid for this decision making, right? So उसको उसके पास टाइम नहीं है, but he has to make decision. Now sometimes क्या ये पॉसिबल है कि हर टाइम इतना टाइम स्पेयर किया जाए कि ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए और ये किया जाए वो किया जाए? नो, sometimes the managerial decision making is so complex that we believe shortcuts, we believe thumb rule, और ये थंब रूल ऐसे ही नहीं आता, इट इज बेस्ड ऑन सम परसेप्शन। कैसे? जैसे जैसे सपोज करो कि कोई बी स्कूल है, कोई अच्छा सा बिजनेस स्कूल है, वहां के बच्चे नॉर्मली अच्छा करते हैं, ठीक है, वहां के बच्चे नॉर्मली अच्छा करते हैं। आई हैव हायर्ड दोज स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज and they have in my organization and they have been doing pretty well since then I do not have any gross complaint with them, ठीक है। अब मेरे पास अगर टाइम नहीं है and I need to make decision making, तो instead of digging into every alternative I would rather go with the same college, okay, हम फिर से उसी कॉलेज से हायर कर लेंगे, इसलिए क्योंकि इस कॉलेज ने पास्ट में अच्छा किया, राइट? तो ऐसा भी होता है। दूसरी चीज, हम अपना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, अब ये डिसाइड करना है कि इस बार का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एंड आई एम आई डू नॉट हैव जस्ट वन वर्क लाइक दैट। सो पास्ट वेंडर से अगर हम मंगा रहे हैं और उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं आया, the vendor has been doing good, the relationship has been fine, the raw material that he's been supplying is also fine, I would rather go on this kind of shortcut कि हमने ऑल्टरनेटिव तो नहीं तलाशा यहाँ पे, we went to shortcuts, or we can call it the rule of thumb. Understood? Since Herbert Simon said that the decision making is very complex, so he also gave a term of satisfying, which is called satisfying. Okay, what is satisfying? जैसे तुम्हारे कॉलेज में एक फंक्शन है, सेटिस्फाइंग का एक छोटा एग्जांपल देके बताते हैं। तुम्हारे कॉलेज में एक फंक्शन है जिसमें तुमको भारत माता बनना है, ओके, तो अब तुम घूमने के लिए जा रहे हो, तुम ये सोच के गए कि मुझे, ऑफ कोर्स दिस एग्जांपल इज एप्लीकेबल टू गर्ल्स बट बॉयज कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस। आपको भारत माता बनना है, आप ये दिमाग में सोच के गए कि मैं एकदम सिल्क की बहुत सुंदर सी व्हाइट कलर की बॉर्डर वाली साड़ी लूंगी जो कि एक्चुअल में डिजायर्ड रिजल्ट है जो तुमको चाहिए, ठीक है, बहुत सुंदर सा एकदम व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का, यू डिसाइडेड कि यू वांट एन ऑफ व्हाइट कलर्ड साड़ी एंड विद अ हेवी व्हाइट बॉर्डर, ठीक है, यू वांटेड समथिंग एल्स फॉर अडॉर्नमेंट एंड एम्बेलिशमेंट्स एंड व्हाटएवर, ये तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा और शायद वो ही बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो दिन तुम्हारा बहुत खराब गया, अनफॉर्चुनेटली यू आर वेरी बिजी, okay, you're very busy, some other work which could not have been suspended that comes in your way, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम मार्केट इतना तलाश करो और अगले दिन तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम क्या करोगे? विल यू कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम फॉर फाइंडिंग दैट ऑफ व्हाइट साड़ी? नो, you will end up with something which is okay, वो खराब नहीं है पर शायद वो उतना बेस्ट नहीं है, वो ऑफ व्हाइट के बदले व्हाइट साड़ी भी हो सकती है वो, बट यू विल से कि हाँ हम भारत माता लग तो जाएंगे इसमें और अच्छे से ही लगेंगे। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड सैटिस्फाइंग, you have to go for something which is, if you do not have time, you do not have information, तुम पटना में हो, तुमको ये मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ये है कि क्या खरीदना है, पर तुमको ये मालूम ही नहीं है कि पटना में वो चीज मिलती कहाँ है, you have lack of information, you have lack of time, तो तुम क्या करोगे? पूरा टाइम वेस्ट करते रहोगे, घूमते रहोगे? No, you will end up in something which cannot be called a compromise, rather you can say that could be called as the less desired था वो, but it was a right decision,
अब ऐसा नहीं है कि फैंसी ड्रेस में कुछ और लेके चले आए, वो गलत डिसीजन मेकिंग. You need to look Bharat Mata like a Bharat Mata, but you have compromised on the actual, the very best desired quality that you had wanted, because you had lack of time, because you had lack of information. ये मैम समझ में आया? सेटिस्फैक्शन उसमें तो नहीं ना आएगा ना मैम. क्यों नहीं आएगा? मैम क्योंकि उसमें तो क्या बताते हैं, संतुष्टि में तो नहीं ना होगा. क्यों? संतुष्टि करने होनी का होती है, तभी संतुष्टि होती है. ये तुमको बैठ के डिसाइड करना मुश्किल है. कभी किसी चीज पे तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए हो क्योंकि तुम, जैसे मान लीजिए मैम, अगर हम लोग को पिज्जा खाना है, वहाँ पे हम्म, नहीं मिला तो हम समोसा खा के आएंगे तो कैसा लगेगा मैम? पिज्जा और समोसा कंप्लीटली अलग अलग चीज है. ये पिज्जा और समोसा की बात नहीं हो रही है, ठीक है? ये पिज्जा और समोसा की बात नहीं हो रही है. इट्स जस्ट कि तुमको सेम चीज मिल रही है थोड़ी सी लेस डिजायर्ड फॉर्म में. और इसको थोड़ा पर्सनल ओपिनियन आप लोग अपना देना बंद कीजिए. इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज, पिज्जा और समोसा कर रहे हो, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में समझो. जब मैनेजर बन के जाओगे तो समझ में आएगा कि समटाइम्स सैटिस्फाइजिंग इज ऑल दैट वी कैन डू इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है? कहने का मतलब जैसे कि अब तुमको सोल्जर बनना है, तो तुमको सोल्जर बनना है तो तुम, ऐसा तो नहीं कि सोल्जर का कपड़ा चाहिए तुमको, कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, सोल्जर का कपड़ा ढूंढना है तो तुम भालू का कपड़ा खरीद के आ जाओगे, फिर बोलोगे मैम कैसा लगेगा हमको. ये दोनों मैम अलग. लिसन, तुम पिज्जा और समोसा इतना ही वियर्ड एग्जांपल था तुम्हारा. ये दोनों अलग अलग एग्जांपल हैं, लेकिन सोल्जर के कपड़े में तुम्हारा कुछ होगा दिमाग में कि गन रखने का पॉइंट होना चाहिए, या यू विल वेयर कार्गो, और यू विल वेयर सिंपल पैंट्स, और यू विल वेयर जो भी तुम्हारे दिमाग में हो, द हैट शुड बी लाइक दिस. उस पे सेटिस्फाइजिंग तुम कर सकते हो कि अगर वो क्वालिटी नहीं मिली, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, तब फिर तुम उसमें कुछ तो डिसीजन मेकिंग करोगे जो रॉन्ग नहीं होगा, बट मे बी तुम्हारा जितना डिजायर था उतना नहीं हो पाएगा, but that is also fine. Okay, because that time you do not have the time to go through discovering all those alternatives and all. Understood, Bhaskar? Pizza and samosa Yes, are two ma'am. weird things. तुम रीजनिंग बनाओ तो तुमको एक वो जो ग्रुप में सर्कल करने आता है ना, which of the following belongs to the same group, बच्चा लोग बनाता है, तुम वो बनाओ. Okay, चलो. The next is garbage can model. See, as we proceed towards rational decision making model, towards Herbert Simon, it was less rational. Towards garbage can model, it is even more irrational. ये completely irrational है. This wasn't even supposed to be proposed as a model. Rather, the propounders of this theory suggested that this is how the decision making is done. They believed. So garbage can model is in sharp contrast with the rational decision making model. सबसे ज़्यादा contrast है. And this decision making model believes in the fact that there are 4 streams which are there in the organization. One is problem, the other one is solution, the third one is participants, and the fourth one is choice opportunities. Problems, you know, when does it arise? When do we say that we are in the state of problem? We say it when the desired result is not the actual result that we want. That is a problem. Solution is, what is solution means? Answer. Yeah, answer to your problem is known as solution. Now, unlike the rational decision making model or the classical model, we can say, we find that वहां पे the problems led to solution. यहाँ पे garbage can model में ये propound किया गया कि the solutions are used to formulate problems. Okay, this is how the garbage can model works. Then you have participants. What is the meaning of participants? Participants का मतलब है organization के लोग, the people who, since organization is not working with all the similar types of people, it has a lots of diversity. People come and people go. Hold on.
Since this model believes in the fact that, okay, now we were talking about the four streams of this model. The one is problems, the other one is solution, the third one is participants. Participants means the people who work in an organization, who come and leave the organization. And in between their coming and living, the organization sees a lot of change in the values, attitude, not change, but diversity in values, attitudes, etc. Because these are all perceived to be individual behavior, which vary from people to people. Okay. Then we have the choice opportunity as the fourth stream. Choice opportunity का मतलब होता है जहां आपको decision making करना है. The various choices of decision making, the opportunities that you get, the occasions that you get for making decision. देखो, sometimes you get to make decision which is a normal thing, जैसे recruitment करना है, ठीक है, जैसे training करवानी है, जैसे fund assign करना है, ये सब होता रहता है. But sometimes the decision making is made in crisis situation, which is again non-programmed. ठीक है, the crisis या बहुत unique situation है जिसको कभी भी witness नहीं किया गया है, तो that is known as the crisis or unique situation. The garbage can model से बस ये रखी, garbage क्या होता है, कचड़ा, ठीक है, कचड़ा. इसको लिटरली इस मॉडल को ऐसे ही बताया गया है कि all these four things, problem, solution, participants and choice opportunities, they already exist in the organization. इस मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन को ही कचरा कंसिडर किया गया है. अ गार्बेज कैन, कचड़े का डब्बा, ठीक है, जिसमें इन चारों चीजों का प्रेजेंस हमेशा रहता है. एंड इट बिलीव कि इतना रैशनल और इतना टाइम और इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है मैनेजर्स को कि वो बैठ के एकदम तरीके से डिसीजन मेकिंग हर चीज का करें. Rather, it is so haphazard, it is so complex, and it is so much dependent upon the condition that they considered organization as a garbage can, where all these four things, problems, solutions, participants, and choice opportunities were present. Now, according to them, the decisions were made when suitability of all four came into existence. Okay, ये चारों जब जहां मैच करते हैं वहां पर गार्बेज कैन मॉडल डिसीजन मेकिंग करता है. ओके, और इट ऑल्सो बिलीव दैट सोल्यूशन, नॉर्मली हम लोग रैशनल मॉडल में क्या पढ़े थे कि प्रॉब्लम्स लीड टू सोल्यूशन. हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे प्रॉब्लम और फिर सोल्यूशन का ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, उसको इम्प्लीमेंट किए और फाइनली एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, यही था. लेकिन इसमें ये बोला गया है कि सोल्यूशन कैन बी इन सर्च ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, मतलब ये चारों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं गार्बेज कैन में. When you have a problem, the solution might lead to the search of problems. And ये हमेशा इस मॉडल ने ये बिलीव किया कि इतना सारा डिसीजंस मेक करने के लिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि यू कैन नॉट गिव सेम प्रायोरिटी टू ऑल द डिसीजंस. ओके, it is upon the expertise, it is upon the judgment of the participants, means the people of the organization, to decide which problem to go with first. ओके, किस प्रॉब्लम के साथ पहले जाना चाहिए, किस प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करने की जरूरत है, किस प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करने की जरूरत है. This goes by the expertise of the participants. Okay, then choice of opportunities, yani occasions on which the decision can be made, will also seek solution. मतलब जैसे रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में रिसोर्सेज की कोई बात नहीं है, रिसोर्स को बस उतना ही यूज किया गया उसी तरीके से एज अ मींस. मतलब ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, तो रिसोर्स ढूंढा, सोल्यूशन ढूंढा, प्रॉब्लम खत्म. ठीक है, बट गार्बेज कैन मॉडल में ये
फर्दर बोला गया कि जो रिसोर्स देखा जाता है, रिसोर्स दैट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट इन डिसीजन मेकिंग मॉडल. ओके, पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वो किसी फर्दर चीज को गिव राइज कर सकता है. जैसे मान लो कि एक फंड है जो एलोकेट किया गया है एल्डरली लोग जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, कान से सुनाई नहीं देता है उनको, या स्पीच इम्पेयरमेंट है किसी का. अब एल्डरली सोशल सिक्योरिटी के नाम पे दिया गया है, ठीक है, पैसा फंड एलोकेट किया गया है. नाउ सिंस दिस फंड हैज बीन एलोकेटेड, तो रैशनल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से क्या होगा, जितना जो दिया गया सोल्यूशन निकालो, काम खत्म. बट गार्बेज कैन मॉडल के हिसाब से दिस कैन गिव राइज टू अ न्यू डायमेंशन. यानी जो समाज के लोग होते हैं, जैसे कि the other people who are researching on this matter, they might get interested and another dimension can start from here. समझ में आई बात? समझ में आया? तो रिसोर्स का काम सिर्फ ऑल्टरनेटिव की तरह अप्लाई करके और सोल्यूशन ढूंढ देना नहीं है. रिसोर्स का काम फर्दर भी किसी और डायमेंशन में उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है. अंडरस्टूड? एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल अज्यूम्ड अ फीडबैक लूप. याद है उसमें फीडबैक था, लूप था. लूप मतलब क्या होता है, जो साइकिल रिपीट करता है अपने आप को. उसमें एक फीडबैक लूप था, यानी कि अगर एक सॉल्यूशन वर्क नहीं किया तो या तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में गलती की है या सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने में गलती की है. तो अगर सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने में गलती की है तो आप ऐसा कीजिए कि आप यू गो विथ अनदर सॉल्यूशन. जो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढा था उसमें जो बी ऑल्टरनेटिव है, नाउ यू गो बैक एंड अप्लाई दैट ऑल्टरनेटिव एंड चेक इफ द रिजल्ट्स आर डिजायर्ड और नॉट. ओके, दिस इज हाउ इट इज supposed to work. But there is no feedback or loop, there is no loop working in garbage can model. The decision is made and that's final. इसलिए क्योंकि हमेशा problems change होती हैं and the uncertainty of the environment affects the decision making also. Understood? These were the two models. With this we complete the chapter of decision making. It was a very small chapter. अगला chapter आपका अब स्टार्ट होगा, जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बिल्कुल फंडामेंटल नॉलेज वाला चैप्टर है, वो स्टार्ट होगा. ठीक है, मार्क्यू जब लिए थे तो तुम लोग का फर्स्ट मार्क्यू में क्या क्या था सिलेबस? मैम अप्रोचेस से ही पूछी थी. अप्रोचेस से था, लेकिन हमको लगता है अप्रोच में सिर्फ दो ही अप्रोच था. हेनरी फ्योल था. यस मैम. अप्रोच बहुत शैलो था. Aditya Sinha is entering right now. Was he there in the class before this? Yes, ma'am. Okay. तो अप्रोच था लेकिन वो बहुत शैलो था. Now I'll ask a little deeper from that chapter. Okay? Go and study various approaches to management. Next class will be Markyu. And I told you कि Markyu जैसे होता है, आप लोग last time भी attend किए हैं, वैसे remain in waiting. I'll join you. You have to answer. And बहुत बड़ा चैप्टर है मैम. 2 दिन मिला है, आज पढ़िए, कल पढ़िए, परसों भी पढ़िए, पढ़ के आइए. ठीक है, इतना चलो.